بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ پنجاب کے ضلع اکاڑا کے کسی گاؤں میں ایک مولوی رہتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، مولوی کا پڑوس کے گاؤں میں بیاہ ہو گیا۔ جب مولوی مقلاوہ لینے جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک میراثی سے ہو گئی۔ مولوی نے دل میں سوچا، اکیلے جانے کی بجائے اپنے ساتھ میراثی کو لے جاتا ہوں۔ راستے میں باتیں کرتے ہوئے جائیں گے تو سفر کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یوں ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولوی میراثی سے کہنے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میراثی تو دل میں امید لگائے بیٹھا تھا، فوراً مولوی کے ہمراہ جانے پر تیار ہو گیا۔ دونوں سفر کرتے رہے۔ میراثی بہت چالاک تھا۔ جب مولوی کا سسرال قریب آیا، دور سے کھیتوں کے پار مولوی کی بیوی کا گاؤں نظر آنے لگا تو میراثی مولوی سے کہنے لگا، دوست، پیٹ کا کھایا کوئی نہیں دیکھتا، تن کا پہنا سب دیکھتے ہیں۔ انسان کی عزت کپڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بندہ اپنے لباس سے جانا جاتا ہے۔ تم تو خیر سے ان کے جوائی یعنی داماد ٹھہرے، کیسے بھی کپڑے پہن لو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے ان کپڑوں میں دیکھیں گے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہاں، تمہاری ناک ضرور کٹ جائے گی۔ تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے کہ مولوی کا دوست اور ان حالوں میں؟ سو اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو میرے کپڑے تم پہن لو اور اپنی پوشاک مجھے دے دو، میں پہن لوں، باقی جو تمہاری صلاح، اپنا تو کام آگاہ کرنا تھا۔ مولوی بیچارہ سادہ لو تھا، چلاک میراثی کی باتوں میں آ گیا۔ شیشم کے درخت کی چھاؤں تلے کھڑی فصلوں کی اوٹ میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لباس تبدیل کیے۔ میراثی کے سادہ اور غریبانہ کپڑے مولوی نے پہن لیے اور مولوی کی عمدہ اور قیمتی پوشاک میراثی نے زیب تن کر لی۔ دونوں چلتے چلتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ جب مولوی کی بیوی کے گھر پہنچے تو مولوی کی ساس، سسر، سالے سالیاں سب داماد کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھاگے بھاگے دروازے پر آئے کہ دونوں کناروں پر سرسوں کا تیل گرایا گیا۔ میراثی نے بڑی شان اور بڑے روب سے قدم اندر رکھا۔ پیچھے پیچھے حیرت میں ڈوبا ہوا مولوی بھی داخل ہوا۔ گھر والوں نے میراثی کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن بیچارے مولوی کی کسی نے جھوٹے منہ بات نہ پوچھی۔ پس پردہ اصل معاملہ یہ تھا کہ سسرالیوں نے میراثی کے اچھے کپڑوں کی وجہ سے دھوکہ کھایا۔ وہ میراثی کو اپنا داماد مولوی سمجھے اور مولوی کو اپنے جمائی کا نوکر۔ دوسری طرف میراثی نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی بجائے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ خوب اکڑ کے ٹانگیں پھیلا کے تکیے کے سہارے چارپائی پر بیٹھا، حقے کے کش لگائے، مزے کے کھانے کھائے۔ غرض مولوی کی ساس، بیوی اور سالیوں سے اپنی خوب خدمتیں کروائیں۔ میراثی کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور چھٹا سر کڑاہی میں تھا۔ مولوی یہ سب کچھ دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں کڑتا تھا۔ ستم بلائے ستم، گھر والوں نے مولوی کو اپنے جمائی کا نوکر گردانتے ہوئے اپنی بکریاں چرانے گاؤں سے باہر کھیتوں میں بھیج دیا۔ پہلی ذلتیں تو مولوی نے جیسے تیسے سہ لی تھی، لیکن یہ بے عزتی ایسی نہیں تھی جسے آسانی سے برداشت کیا جا سکتا۔ مولوی بھی کالا علم پڑا ہوا تھا، جادو ٹونے سے واقف تھا۔ بیچارہ کہاں چرواہے کے کتے کی طرح بکریوں کے آگے پیچھے دوڑتا، سو وہ کیکر کے گھنے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا، جڑ جاؤ تم۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سب بکریاں آپس میں جڑ گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہری گھاس کھاتی جا رہی تھی۔ مولوی ریوڑ کو اکٹھا رکھنے کی زحمت سے بچا کیکر تلے بیٹھا سارا وقت آنکھیں بند کیے مزے سے مرلی بجاتا رہا۔ جب شام ہوئی تو ریوڑ کو واپس گھر لے جانے کا موقع آیا تو مولوی نے مرلی ایک طرف رکھی اور بولا، کھل جاؤ تم۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بکریاں کھل گئیں، ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں اور مولوی انہیں ہانکتا ہوا گھر لے آیا۔ جو ہی مولوی نے گھر میں قدم رکھا، کیا دیکھتا ہے کہ میراثی مزے سے چارپائی پر بیٹھا ہے اور سب سے خدمت کروا رہا ہے۔ میراثی نے مولوی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اہل خانہ سے ٹہل سیوا کروانے اور ٹھٹھا مذاق کرنے میں مصروف رہا۔ مولوی کو یوں محسوس ہوا جیسے میراثی اسے کہہ رہا ہو، تو کس باغ کی مولی ہے۔ جب تک معاملہ مولوی کی ساس اور سالیوں کا تھا، بیچارہ کسی نہ کسی طرح دل پر جبر کرتا رہا، لیکن جب مولوی کی بیوی سرخ لباس پہنے، بڑا سا گھونگھٹ نکالے، سوئی موئی بنی، شرماتی لجاتی ہاتھوں میں سوئیوں کی پلیٹ پکڑے، میراثی کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو یہ منظر مولوی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ معاملہ واقعی بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اب اس کا سدے باب ضروری تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال میراثی کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لانا، اسے اس کی یہ اوقات یاد دلانا لازم ٹھہر گیا تھا۔
चुनाचे जो ही मौलवी की दुल्हन सवैयों से भरी थाली मिरासी को पकड़ाने लगी और मिरासी शर्मिंदा शर्मिंदा सा लाल सुर्ख चेहरा, होठों पे शर्मीली मुस्कुराहट, आंखें झुकाए हाथ बढ़ाए पकड़ने लगा। ऐन इस मौका पर मौलवी ने आहिस्ता से जेरे लब वही मंत्र फूंका, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ प्लेट से जुड़ गए। एक तरफ मौलवी की बीवी चारपाई के पास खड़ी जोर लगा रही है तो दूसरी तरफ मिरासी चारपाई पर बैठा जोर आजमाई कर रहा है, मगर हाथ थे कि टस से मस ना होते थे, जैसे गूंद से चिपक गए हों। उधर मौलवी की बीवी परेशान, इधर मिरासी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मौलवी की सास कुछ दूर एक पीढ़ी पर बैठी ये सब मंजर देख रही थी। वहीं से पुकारी, खैर ते है किवें खड़ी हैं। तर्जमा इसका यह है कि अरे खैर तो है, किस लिए खड़ी हो। बेटी डरी डरी सहमी हुई चीखी, माए थाली ने मेरे हाथ फाड़ लिए हैं, ऐ माँ प्लेट ने मेरे हाथ पकड़ लिया है, प्लेट मुझे छोड़ेगी तो चलूंगी ना। ये सुनकर मौलवी की सास अपनी जगह से उठी और दौड़ी दौड़ी आई। उधर इसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए प्लेट को पकड़कर खींचना चाहा। उधर मौलवी ने जेर जबर लगाकर कहा, जुड़ जाओ तुम। लीजिए साहब। मौलवी की सास के हाथ भी थाली से चिपक कर रह गए। अब तीनों खुद को आज़ाद करवाने के लिए जोर लगा रहे हैं और चीखें मार रहे हैं, मगर थाली है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी बीवी, बेटी और दामाद की पुकारें सुनकर मौलवी का ससुर भागा भागा आया। जैसे ही इसके हाथों ने प्लेट को छुआ, मौलवी ने फिर मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ जाओ तुम। मौलवी के ससुर के हाथ भी प्लेट से जुड़ गए। काफी देर तक वो चारों प्लेट से दंगल लड़ते रहे, चीखें मारते रहे, खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी की सालियां डरी सहमी दूर खड़ी ये सारा मंजर देखती रहीं। इनमें से किसी को भी करीब आने और प्लेट को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मौलवी इन्हें तंग करके खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसने मिरासी से खूब बदला लिया था। आखिर जब कुछ पेश न गई तो मिरासी, मौलवी की बीवी, सास और ससुर चारों रोने लगे। मौलवी से यह नज़ारा ना देखा गया, इसका दिल भर आया और इसने आहिस्ता से कहा, खुल जाओ तुम। फिर क्या था, सबके हाथ खुल गए। प्लेट ने सबके हाथ छोड़ दिए। मौलवी की बीवी ने सवैयों से भरी थाली वहीं फेंकी और भागकर कमरे में जा घुसी। बाकी तीनों भी हैरान परेशान बड़ी देर तक उंगलियों को मोड़ मोड़ कर देखते रहे कि सब ठीक है या नहीं। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनके साथ ये हुआ क्या था। इतने में रात पड़ गई। जेठ हाड़ के दिन थे। सेन में पानी का छिड़काव करके चारपाइयां बिछा दी गई। मौलवी और मिरासी सोने के लिए लेटे। दिन भर मिरासी की खूब खिदमत हुई थी। इसने अपनी गुंजाइश से कहीं बढ़कर खाने खाए थे। अगरचे दिल में यह भी था कि खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं, लेकिन ऐसे मौके पर दिल की कौन काफिर सुनता है। इसलिए जब आधी रात हुई, मिरासी को शदीद हाजत हुई। बेचारा उठ के बैठा। मौलवी के ससुर, सास, बीवी, साले सालियां सब अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे खराटे ले रहे थे। खुशकिस्मती से बगल में मौलवी की चारपाई बिछी हुई थी। मिरासी ने झिंझोड़ के इसे जगाया। मौलवी हुड़बड़ाकर उठ बैठा। मिरासी इसकी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगा, मौलवी, इस वक्त मुझे पेट में सख्त दर्द हो रहा है और मैं पेशाब करना चाहता हूँ, लिहाजा खुदा के लिए मेरे साथ। उस वक्त उस जमाने में घरों में बैतुल खला यानी वाशरूम बनाने का रिवाज नहीं था। सब मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे रफा हाजत के लिए बाहर खेतों में जाते थे। मौलवी मिरासी के हमरा जाने पर रजामंद हो गया। दोनों चुपचाप छुपते छुपाते रात के अंधेरे में घर से निकले। गांव से काफी बाहर खेतों में आ गए। मौलवी तारों भरे आसमान के नीचे कुछ दूर खड़ा हो गया और मिरासी बैठ के रफा हाजत करने लगा। जब फरागत हुई तो सफाई का मसला दरपेश हुआ। करीब ही किसी ने शीशम का पेड़ काट के फेंका हुआ था। इसका तना, जो खूब लंबा और काफी चौड़ा था, जमीन पर पड़ा हुआ था। मौलवी इसकी तरफ इशारा करके मिरासी से कहने लगा, अरे यार, इस तने पर बैठ जाओ, इससे अच्छी तरह पीठ घिसाओ, सब साफ हो जाएगा। मिरासी ने ऐसा ही किया। तने के सिरे पर बैठकर अपनी पीठ घिसाने लगा। मौलवी मिरासी से इस कदर तंग आया हुआ था कि पहले वाले इंतकाम से इसकी पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई थी। ये मिरासी से बदला लेने का एक और नादिर मौका था। इसने आहिस्ता मुंह ही मुंह में कहा, जुड़ जाओ तुम। वो तना मिरासी की पीठ से जुड़ गया। अब जो ही वो उठने लगा, पेड़ का तना भी इसके साथ ही ऊपर उठ गया। इस नई मुसीबत से मिरासी बंध चुका था। इसने तने को अपनी पीठ से अलहदा करने की बख्तेरी कोशिश की, लेकिन नतीजा वही। ढाक के 3 पार मिरासी जिस तरफ भी जाता, टाली का भारी भरकम तना इसके पीछे पीछे जाता। बेचारा गांव में पहुंचा तो और आफत आई। जिस गली से भी गुजरता, तना कभी दाएं कभी बाएं
घरों की दीवारों और दरवाजों से टकराता। सारा गांव इस आफत नागहानी से जाग गया। जिस घर के दरवाजे से भी तना टकराता, आवाज पैदा होती, घर वाले आंखें मलते हुए भागे भागे बाहर निकलते कि खुदा खैर करे, आधी रात को क्या बला नाजिल हो गई। गली में यह अजब नज़ारा देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती कि एक शख्स की पीठ में टाली का भारी भरकम तना धंसा हुआ है और वो जिस तरफ भी जाता है तना इसके पीछे पीछे जाता है। कुछ देर तो हैरान होकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, फिर यकलख्ती वो हाँ हाँ ही करने लगते और हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। बाज तो हंसते हंसते लौट जाते। उधर मौलवी दिल ही दिल में खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। मिरासी ने तो जो किया सो किया, मगर मौलवी ने भी इससे खूब इंतकाम लिया। सारे गांव के सामने इसकी खूब फजीयत हो रही थी, खूब रसवाई हो रही थी। बड़ी बूढ़ियां दिल खोल कर कहके लगा रही थी। जवान औरतें चादरों में लिपटी घरों की छतों पर खड़ी होठों में दुपट्टों के किनारे दबाए हंस रही थी और गलियों में मर्द और बच्चे कहके लगाते, तालियां बजाते, आवाजें कसते मिरासी के पीछे पीछे चल रहे थे। हौले हौले चलता ये हजूम मिरासी के साथ साथ मौलवी के ससुराल के सामने आ पहुंचा। बाहर शोर सुनकर सब ससुरालिये हुड़बड़ा के उठे और दरवाजे की तरफ भागे। वहां अजीब मंजर था। अपने जवाई की ये हालत देखकर बेचारे पानी पानी हो गए। सारे गांव के सामने इनकी तो नाक जैसे कट गई थी। मौलवी की बीवी तो किसी का सामना करने के काबिल ना रही, बेचारी कमरे में बंद होकर रह गई। मिरासी की आंखें के लिए ये सजा कुछ ज्यादा ही थी। अब इसने रोते हुए सब के सामने इस राज से पर्दा उठाया कि मैं तो मिरासी हूँ, तुम्हारा असली दामाद तो ये मौलवी है। फिर इसने गिड़गिड़ा कर मौलवी से अपने किए की मुआफी मांगी। इस पर मौलवी का दिल भी भर आया। इसने इसे मुआफ कर दिया और हौले से कहा, खुल जा तू। बस इतना कहने की देर थी कि दरख्त का तना मिरासी की पीठ से अलग हो गया। यूं कहीं जाकर मिरासी की जान की खुलासी हुई। इसने सुख का सांस लिया, जान बची 100 लाखों पाए। अब हकीकत खुल चुकी थी। मौलवी के ससुरालियों ने मौलवी को सर आंखों पर बिठा लिया। सास सालियां इसके नाज नखरे उठाने में लग गईं। ससुर और साले आगे पीछे फिरने लगे और बीवी घूंघट ओढ़े दरवाजे के पीछे से चोरी चोरी इसे देख रही थी। मौलवी चारपाई पे किसी साहूकार की तरह बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा के मिरासी की तरफ देख रहा था। मिरासी को कोई झूठा मुंह ना पूछ रहा था। अब मिरासी के साथ वही सलूक हो रहा था जैसा इससे पहले मौलवी के साथ हुआ था। जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन वो भी मिरासी था। शरारत इसकी घुटी में पड़ी हुई थी। कुछ देर तक तो दिल ही दिल में पेशोताब खाता रहा। फिर मौलवी से बदला लेने का पक्का इरादा करके पुरसकून हो गया। चौंके रिवाज है कि जब दामाद मकलावा लेने के लिए आता है तो आम तौर पर एक रात अपने ससुराल में जरूर गुजारता है। मौलवी एक रात गुजार चुका था, मगर वो रात इसने अपने ससुराल में दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि नौकर बनकर बिताई थी। इसके ससुराल वालों ने इसे रोक लिया कि एक रात हमारे यहाँ और बसर करो ताकि हम अपने जवाई का सही मानों में हक अदा कर सके, जी भर के दिल की हसरतें निकाल सके। गर्ज सारा दिन मौलवी की आओ भगत होती रही। इसने ऐसे ऐसे रंग बिरंगे किस्म किस्म के खाने खाए और इतनी मिकदार में खाए कि जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए थे। जब आधी रात हुई मौलवी की आंख खुल गई। इसे शदीद प्यास लगी हुई थी। पहलू में एक चरपाई पर मिरासी घोड़े बेचकर सो रहा था। मौलवी ने झिंझोड़ कर मिरासी को जगाया। मिरासी हुड़बड़ाकर उठ बैठा। मौलवी ने इसे पानी लाने के लिए कहा। कुछ दूर कुएं के ठंडे मीठे पानी से भरा हुआ मट्टी का घड़ा रखा था। पास ही पानी पीने के लिए मट्टी का प्याला भी था। मिरासी मौलवी के लिए पानी लेने आया। ये मौलवी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सुनहरी मौका था। मिरासी के शरारती जहन ने उसी लम्हे एक साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। इसने मटका उंडेला, पानी से प्याला भरा। करीब ही साबन की एक टिकिया पड़ी हुई थी। इसने साबन अच्छी तरह पानी में घोल दिया और यही साबन घुला पानी ले जाकर मौलवी को पिला दिया। इस तरह यके बाद दीगरे इसने साबन घोल घोल के पानी के कई प्याले मौलवी को जा पिलाए। अंधेरे के बाइस मौलवी को पता ही ना चला कि वो जो पानी पी रहा है इसमें क्या मिला हुआ है। चुनाचे थोड़ी ही देर बाद इसके पेट में गड़बड़ होने लगी, मरोड़े उठने लगे। अब इतना वक्त नहीं था कि भाग कर गाँव से बाहर खेतों में जाकर रफ़ा हाजत की जाती। मौलवी ने मिरासी को मदद के लिए पुकारा। वो पहले ही तैयार बैठा था। जल्दी से डग भरता हुआ पानी के मटके की तरफ गया। घड़ा उंडेल के सारा पानी जमीन पर बहा दिया और खाली घड़ा उठाकर मौलवी के पास आया और कहने लगा, मौलवी इस वक्त तो यही एक तरकीब हो सकती है कि तुम ये खाली मटका जमीन पर रखो और इसके मुंह पर बैठ जाओ और रफ़ा हाजत करते जाओ। मरता क्या ना करता। अब सोचने का वक्त किस काफिर के पास था।
मौलवी ने आओ देखा ना ताओ झट से घोड़े पर सवार हो गया। पेट छूट रहा था और दस्त पर दस्त आ रहे थे। जरा सी देर में घड़ा भर गया। मौलवी फारिग हो चुका था। वो मिरासी से पूछने लगा कि इस मटके का अब क्या करूं। अब मिरासी के ज़हन में तैयार होने वाली साजिश के अगले मरहले को अमली जामा पहनाने का वक्त था। मिरासी ने फौरन जवाब दिया, करना क्या है, इसे उठाओ, घर से निकला और गांव से बाहर कहीं दूर फेंक आओ। रात का पहर है, किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, अगर ये मटका यहाँ पड़ा रहा तो पांव फटते ही सबको खबर हो जाएगी। नई नवेली दुल्हन के आगे तुम्हारी बहुत रुसवाई होगी। मौलवी तो यह सोचकर ही कांप उठा। इसने उसी वक्त मिरासी की हिदायत के मुताबिक घड़ा उठा के सर पर रखा और घर से बाहर निकल गया। अब साजिश के हिस्से पर अमल दरामद का वक्त था। मिरासी ने झंझोड़ झिंझोड़ कर सब घर वालों को जगाया और पुकार पुकार कर कहने लगा, अल्लाह के बंदो, तुम यहाँ मजे से पड़े सो रहे हो और तुम्हारा दामाद उधर आधी रात को चुपके चुपके तुम्हारी बेटी को छोड़ के जाने किस तरफ चला जा रहा है। ये सुनने की देर थी कि सब घर वाले चारपाइयों से छलांगे मार के कूदे और अपने दामाद को आवाजें देते इसके पीछे भागे। मौलवी ने जब इन्हें आते देखा तो परेशानी में अपनी रफ्तार तेज कर दी। उधर ससुरालिये भी इसके पीछे लगे। अब सूरत हाल ये थी कि मौलवी आगे आगे भाग रहा था और ससुरालिये पीछे पीछे। चूंकि मौलवी ने सर पर भारी मटका उठा रखा था, इसलिए इसकी रफ्तार इनके निस्बत कम थी। चुनांचे जल्दी इन्होंने इसे जा लिया। जैसे ही इन्होंने इसे पकड़ के खींचा, घड़ा मौलवी के सर से नीचे आ रहा, जमीन पर गिरा, एक धमाका हुआ और छींटें उड़ी और सब लोगों के कपड़े गलाजत से भर गए। खुदा खुदा करके सुबह हुई। मौलवी के ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को रुखसत किया, लेकिन उस वक्त भी इन पर हैरत आ रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गुज़श्ता रात वाला क्या वाकया था। वो जितना गौर करते उतना ही उलझ कर रह जाते थे, मगर मौलवी की समझ में सब आ रहा था। चुनांचे जैसे ही वो तीनों, मौलवी, मौलवी की बीवी और मिरासी, गांव से बाहर निकले, मौलवी ने हाथ जोड़ के मिरासी से मुआफ़ी मांगी और कहा, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपनी राह लो और मैं अपनी। मुझसे सख्त गलती हो गई जो तुम्हें अपने साथ ले आया। मेरे बाप दादा की तौबा, अगर जिंदगी में दोबारा मैं ऐसी गलती करूं तो मैं इंसान का नहीं, किसी जानवर का बेटा हूं। मैं तो सारे दुल्हों को वसीयत करके मरूंगा कि मकलावा लेने अकेले ही आना, कभी किसी को साथ न लाना, खास तौर पर किसी मिरासी को तो हरगिज नहीं। इतना कहकर मौलवी अपनी नई नवेली दुल्हन को लिए अपने रास्ते पर रवाना हो गया और मिरासी हंसता मुस्कुराता अपनी राह पर चल पड़ा।